English, Book 2, Chapter 3, The Birthday Party. Hello bachcho, how are you all? Are you people ready to start the new chapter? So this is your favorite topic, the title Birthday Party. So do you celebrate your birthday, or do you enjoy your birthday party or your friend's birthday party? So we are going to talk about this, right? In the story, what do we have? We all love celebrating our birthday with our friends and family. Read this story and learn how Mansi is the character of this chapter, celebrated her birthday with her friends Aman and Riya. So we have three characters, Mansi, Aman and Riya, right? Color the picture beautifully. Also draw the candles of your age. जितनी भी एज आपकी है, 6 or 7 or 8, right? Okay, let's read the chapter. Aman came out of the house. He had a packet of gift in his hand, and on the way he stopped at Riya's house. He rang the bell. Riya opened the door. So मुझे लगता है ये दोनों फ्रेंड्स बर्थडे पर जा रहे हैं मानसी के. सो अमन अपने घर से निकला एक सुंदर सा बर्थडे पैकेट लेकर, और क्या हुआ, रिया को बुलाने के लिए रिया के घर गए. फाइन, रिया ने डोर ओपन किया. अमन आस्क्ड, आर यू रेडी? रिया रिप्लाइड, यस आई एम कमिंग विथ यू इन नो टाइम. बस मैं चलने ही वाली हूँ. आफ्टर सम टाइम बोथ अमन एंड रिया वर वॉकिंग इन द स्ट्रीट. अमन सेड, what have you bought as a gift for Mansi? Riya said, I have bought a set of handkerchiefs. What about you? Aman said, I have bought a toy car. They entered Mansi's house. The birthday party was arranged in the drawing room, and it was a large hall tastefully decorated with proper decoration, right? It was very attractive decoration बच्चों, with proper decoration, balloons and flowers. In the center there was placed a large table. A beautiful cake was placed on it. ये सब सुनकर देखकर आपको भी अपनी बर्थडे पार्टी का याद आ रहा होगा ना, जब आपने सेलिब्रेट किया होगा और आपके किसी फ्रेंड ने सेलिब्रेट किया होगा. There were 6 candles on it. तो क्या मतलब हुआ अगर वहाँ 6 candles थी तो? कि मानसी 6 years की है. Along one side in the hall there were placed some chairs, while on the other was placed the music system. So डांस तो होने वाला था वहाँ. Music was playing at a low sound. The guests had started coming. They were already 10 guests in the hall. जब वो पहुँचे ना, वहाँ already 10 लोग थे. Some children were playing with balloons. Mansi's parents were welcoming all guests. क्योंकि host थे ना वो लोग, तो वो सबका welcome कर रहे थे. After some time, Mansi entered the hall. Birthday girl. She entered the hall and she looked like a little fairy. जो fairy tale देखी है ना आपने, उसके बारे में सुना है ना, फेरी के बारे में, बिल्कुल वैसी ही लग रही थी. Her mother, Mrs. सीमा उनकी मदर का नाम था, lighted the candles. Her father, Mr. Sharma, gave her the knife. All guests surrounded, मतलब to be all around the table. Mansi cut the cake and blew out. Blew out क्या? हाँ जी, कैंडल्स को blow out करना, to put out a flame by air from mouth. जैसे आप मुंह से मोमबत्तियों को बुझाते हो ना हवा से. Okay, with this all guests started clapping and singing in chorus. तो क्या गाया होगा उन्होंने, सोचो. Happy birthday to you, happy birthday to you, oh dear Mansi. Happy birthday to you, happy birthday to you. Mansi pushed a piece of cake in her father's mouth and then in her mother's mouth. सबसे पहले तो मम्मा पापा को ही खिलाते हैं ना. So they too put in a piece of cake in her mouth. उस मानसी ने अपने मम डैड को खिलाया और मम्मा पापा ने मानसी को खिलाया. The guests started giving gifts to मानसी. फेवरेट मोमेंट ऑफ योर. सबको अच्छा लगता है ना ये वाला मोमेंट जब सब गिफ्ट देते हैं,
Right? The guests started giving gifts to Mansi and Mansi thanked them all. Aman gave the packet of gift to Mansi and said, "Happy birthday to you, Mansi." Mansi said, "Thank you." Riya gave Mansi her gift and said, "Many, many happy returns of the day, Mansi." Mansi said, "Thank you." तो जब भी हम किसी को विश करते हैं तो हम उन्हें हैप्पी बर्थडे विश भी करते हैं और हमें उन्हें मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे भी बोलते हैं क्योंकि ये दिन उनका बार बार आए. रिया, तो देन what happened? Now the music system was put on a loud sound. है ना, बहुत तेज साउंड पर चला दिया गया. जैसे याद आया कौन चलाता था? लास्ट चैप्टर में, राइट. ऑल चिल्ड्रन एंड गेस्ट स्टार्टेड डांसिंग. आफ्टर सम टाइम मिसेस सीमा ब्रॉट स्लाइसेस ऑफ केक ऑन अ प्लेटर एंड ऑफर दैम टू ऑल गेस्ट. क्योंकि जो केक कट गया था उस केक को सबको ऑफर भी तो करना था ना. शी ऑल्सो इन्वाइटेड दैम ऑल टू डिनर. सबको उन्होंने डिनर के लिए भी इनवाइट किया. डिनर एंड डांस कॉन्टिन्यूड टुगेदर. दोनों साथ साथ चल रहे थे. बच्चे डांस भी कर रहे थे, बड़े भी डांस कर रहे थे और डिनर भी चल रहा था. देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर ईटेबल्स. एवरीबडी एट टू देयर डिलाइट. डिलाइट मतलब ग्रेट प्लेजर. सबको बहुत खुशी हो रही थी खाना खाकर. The guests started returning at 10 o'clock. Mansi's parents gave return gifts to all guests and thanked them for their arrival. बच्चों को भी कितना अच्छा लगता है ना जब वो एक गिफ्ट लाते हैं और उनको रिटर्न गिफ्ट मिलता है. तो मानसी के मम्मा पापा ने सबको एक एक रिटर्न गिफ्ट दिया और सबको थैंक्स बोला कि उन सबके आने के लिए. राइट? सो बच्चों, आप कितना एंजॉय करते हैं अपनी बर्थडे पार्टी में या अपने फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी में, और आपको ये बर्थडे पार्टी में घूमकर कैसा लगा बताइएगा. ओके, सो नाउ आपने जो भी सीखा है बच्चों, बेस्ड ऑन दैट वी आर गोइंग टू डू द एक्सरसाइजेस. सो इन फर्स्ट वन यू हैव टू पुट द करेक्ट ऑप्शन. आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल फॉर यू. अमन हैड अ पैकेट ऑफ गिफ्ट इन हिज हैंड. वेरी गुड. सो लाइकवाइज करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए एंड डू देम. फिल इन द ब्लैंक. अमन केम आउट ऑफ द house. Okay, right. Do likewise all. Write T for true, F for false. Aman and Riya bought a toy car and a dress as gift for Mansi. अब सोचिए, क्या यही हुआ था कि अमन और रिया एक टॉय कार लाए थे और मानसी एक ड्रेस लाई थी एज गिफ्ट? सोचिए इस बारे में. अगर आपको लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है तो आप टी लिखिए. अगर आपको लगता है चैप्टर में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप फॉल्स मेंशन करेंगे. ओके, लाइकवाइज डू ऑल. बच्चा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. whom did अमन पिक while on his way to Mansi's home? किसको अमन ने पिक किया था अपने घर से निकलकर? सोचिए इस बारे में. रिया को. वेरी गुड. सो यू कैन राइट अमन picked Riya while on his way to Mansi's home. Fine. Likewise write all the answers बच्चों. Okay. So, critical thinking. What does the 6 candles on Mansi's birthday cake signify? ये आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. क्या सिग्निफाई करता है 6 कैंडल्स का होना उसके बर्थडे केक पर? ओके, प्ले विद वर्ड्स. बच्चा, आपको एनसर्कल करना है करेक्ट स्पेलिंग्स को, और जो स्पेलिंग आपको गलत लग रहे हैं आप उन्हें सर्कल कर दीजिए. आपको ऐसा कोई लग रहा है कोई स्पेलिंग गलत है? यस, एनिमी. वेरी गुड. तो इसको आप सर्कल करेंगे. राइट? कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स. बच्चा, सम वर्ड्स आर गिवन विच blank, they have given some letters but they haven't completed. आपको complete करना है. For example, the first one you can say gate. GATE बनता है? नहीं. क्यों? क्योंकि आपका लास्ट तो T वर्ड है. आप क्या करेंगे? Think about. Okay. Yes, guest, friends, parents. Okay. Very good. Think about बच्चों. नाउ ग्रामर इन यूज. यस बच्चा, आपने ये टॉपिक, कौन सा टॉपिक आपको लगता है आपने ग्रामर में आपके चैप्टर में आपने इंक्लूड किया है? डू हैव एन आइडिया? नाउन. राइट बच्चों. सो व्हाट इज नाउन? जो आपने हिंदी में पढ़ा संज्ञा, वो आप इंग्लिश में नाउन पढ़ने जा रहे हैं.
नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। याद है आपको संज्ञा? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, यस, उसको संज्ञा कहते हैं। लाइकवाइज पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग को नाउन कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाउन, वन इज प्रॉपर नाउन, अनदर इज कॉमन नाउन। मैं अगर एग्जाम्पल लूँ प्रॉपर नाउन का तो अमन एक प्रॉपर नाउन है, और अगर मैं बॉय बोलती हूँ अमन को तो ये कॉमन नाउन हुआ, राइट? दे आर स्पेसिफिक नेम्स फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स एंड ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। यस बेटा, अगर आपको किसी का नाम लिखना है तो यू विल नेवर राइट इन लोअर लेटर्स, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। Common noun, they are general names for people, places or things and do not begin with a capital letter. Suppose मैंने boy लिखना है, I won't write B capital, okay? Unless they start a sentence. क्योंकि अगर मुझे ये लिखना है boy is coming here, so that I can start with capital letter, but I won't write in between अगर boy आता है, but name अगर बीच में आएगा, suppose you have to write Aman anywhere in the sentence or beginning the sentence. Anywhere if you write Aman or Tina or Mansi, the first letter will be capital. I hope you understood, right? So in this next question, what you have to do, you have to underline the sentence, following sentences and write whether underlined noun is proper noun or common noun. So मैं first example में आपको बताती हूँ सारा. सारा is a girl, proper noun किसी का नाम है, आप इसको प्रॉपर नाउन PN से मेंशन करें. फाइन, लाइकवाइज ऑल. नाउ लिसन केयरफुली, आप टीचर को ठीक से सुनिएगा. स्पीक आउट. इमेजिन यू आर द होस्ट ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ लाइक मानसी एंड प्रैक्टिस हाउ यू वुड वेलकम योर गेस्ट. व्हाट वुड यू से टू मेक देम फील हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट द पार्टी? क्या बोलेंगे आप उन्हें? ओके, आप भी फील करें आप फेरी हैं और आप बहुत सुंदर लग रहे हो. आप कैसे गेस्ट को डील करेंगे? राइटिंग पार्ट में आपको क्या करना है बच्चा? लुक एट द पिक्चर एंड राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट दिस पिक्चर. हैंड्स ऑन फन, यस. कलर द बॉक्सेस. फाइन, आपको जो कलर आपको दिया गया है फॉर मंथ्स, फॉर डेज, फॉर सीजन्स, फॉर फ्रूट्स, आप उनको उसी कलर के अकॉर्डिंग फन के साथ करेंगे, राइट? ओके, सो व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी हैव फन बच्चों, एंजॉय.